السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پری گل جلدی کالج سے گھر آ گئی۔ پہلے وہ اپنی دوست فریحہ کے ساتھ کپڑے خریدنے گئی تھی۔ آج امی کے ساتھ جانا تھا۔ اس کے ابا بہت سخت تھے، وہ اسے کہیں جانے نہیں دیتے تھے سوائے کالج کے۔ میٹر کے بعد انہوں نے آگے پڑھنے سے منع کر دیا، لیکن امی کی بہت کوششوں اور اس کی خود کی منت سماجت کے بعد اسے اجازت ملی۔ جب ابا گھر میں ہوتے تو پری گل اور چھوٹی بہنوں کا سانس رکی رہتی۔ خود امی کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو کچھ بول سکے۔ اگر کبھی امی کچھ کہہ بھی دیتی تو ابا انہیں مارنے لگ جاتے۔ پری گل جب کالج جاتی تو پوری طرح برقعے میں لپٹی ہوئی ہوتی۔ اس دن بھی فریحہ زبردستی بازار لے کر گئی۔ پری گل بہت ڈر رہی تھی کہیں ابا گھر نہ آ جائیں۔ جلدی کرو فریحہ، فریحہ اسے سمجھا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، کبھی گھر سے بھی نکلا کرو، آخر کب تک ڈر ڈر کر گھر میں بیٹھی رہو گی؟ کچھ بھی ہو لیکن جلدی کرو، ابا کے آنے سے پہلے مجھے گھر جانا ہے۔ اعظم کی بار بار نظریں بھٹک رہی تھی، پری گل کی طرف جا رہی تھی اور پری گل کبھی ادھر اور کبھی ادھر دیکھنے لگ گئی۔ وہ تھی بھی تو بہت ہی خوبصورت، جو ایک بار دیکھ لیتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا، اور اعظم کا یہی حال تھا، اور برقعے میں نقاب میں تو اس کا چہرہ ماہتاب کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ دونوں نے جلدی جلدی کپڑا خریدا اور گھر آ گئی تھی۔ گھر آ کر اسے بھی ایک بے چینی سی محسوس ہوئی۔ بار بار اعظم کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ رات کو بستر پر لیٹنے کے باوجود بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج اس نے امی کے ساتھ جانا تھا۔ ایک عجیب سی خوشی تھی۔ کچھ ہی دیر میں امی تیار ہو گئی۔ چلو اب جلدی چلو، واپس بھی آنا ہے، کہیں تمہارے ابا آ گئے نا تو خیر نہیں ہماری۔ فریحہ کو لے کر وہ دونوں اعظم کی دکان پر موجود تھی۔ اعظم تو جیسے انتظار میں بیٹھا تھا۔ پری گل کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک گئیں۔ اعظم نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ فریحہ سے بولا، بھائی کافی دن بعد آئی ہیں آپ، کیا بات ہے؟ فریحہ بولی، پرسوں تو آئے تھے، لگتا ہے بھول گئے ہیں۔ اعظم بھائی، یا کوئی اور بات ہے؟ اعظم نے آنکھیں چرا لی، پہلے چائے پھر کوئی اور بات، اور اس نے ملازم کے ہاتھ جلدی سے چائے منگوائی۔ پھر وہ سب لوگ خوشگوار ماحول میں چائے پینے لگے۔ پری گل کی امی نے اعظم سے کہا، بیٹا ہمیں تھوڑی جلدی ہے، آپ کپڑا دکھائیں۔ جی آنٹی ابھی لے۔ اعظم نے کپڑا نکال کر دیا۔ امی نے 2 قمیصوں کا کپڑا لیا۔ اعظم نے اسی قیمت میں ریٹ لگایا جس قیمت میں پہلے پری گل فریحہ لے کر گئی تھی۔ پھر وہ جانے کے لیے اٹھنے لگی تو اعظم نے فریحہ سے کہا، بھائی آج بہت جلدی ہے آپ کو؟ ہاں جی، کام بہت زیادہ ہے اس لیے۔ اچھا اپنا فون نمبر تو دیتی جائیں۔ لیکن جناب ان کے پاس موبائل ہی نہیں ہے، فریحہ نے بتایا۔ اچھا پھر اپنا نمبر دیتی جائیں اور ہیلپ بھی کر دیا کرنا ہماری تھوڑی سی۔ اچھا جی، جو حکم آپ کا، فریحہ بولی۔ پھر فریحہ نے اپنا نمبر دے دیا۔ 4-5 دن کے بعد اعظم نے فریحہ کو کال ملائی۔ سلام دعا کے بعد اعظم نے کہا، اس کی بات کروا دے پری گل سے، تھوڑا مشکل ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں، میں اس سے رابطہ کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور کچھ دیر بعد پھر کال کی تو اس نے گل کی بات کروا دی۔ گل کی آواز سنتے ہی اعظم نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، جس کا جواب پری گل نے بھی ہاں میں دیا۔ یہ سن کر اعظم جیسے پاگل ہو گیا، خوشی سے کافی باتیں کی، پھر کال بند کر دی۔ پری گل تو خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی تھی۔ ایک دن جب پری گل کالج چھٹی کے بعد گیٹ سے نکل رہی تھی تو گیٹ سے کچھ دور اعظم کھڑا نظر آیا۔ وہ ڈر کے مارے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب رش کچھ کم ہوا تو وہ ہمت کر کے اعظم کے پاس پہنچ گئی اور بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اگر کوئی کسی نے دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، پلیز تم چلے جاؤ۔ اعظم بولا، تم ڈرو مت، جلدی سے بائک پر بیٹھ جاؤ۔ بہت اصرار کے بعد وہ جلدی سے بائک پر بیٹھ گئی تو اعظم نے بائک ایک پارک میں روکی۔ پارک میں زیادہ رش نہیں تھا۔ وہ دونوں پارک میں ایک طرف بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ پری گل کی ڈر سے جان نکلی جا رہی تھی۔ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، تسلی رکھو، اعظم نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ ایسے کبھی گھر سے نکلی بھی تو نہیں تھی۔ اعظم سموسے اور بوتلیں لے آیا، دونوں کھانے لگے۔ پری گل شرم سے سمٹی جا رہی تھی۔ اعظم نے پری گل کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا اور بولا، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو اور مجھ سے شرما رہی ہو۔ پری گل بولی، میں نے کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی، آج پہلی بار تم سے بات کر رہی ہوں اور تم نے میرا ہاتھ چھوا ہے۔ یہ باتیں سن کر اعظم بہت خوش ہوا کہ جس سے محبت کی وہ ایک پاک دامن لڑکی ہے۔ باتیں کرتے کرتے نہ جانے کتنا ٹائم گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ بہت سی قسمیں اور بہت سے وعدے کیے۔ دونوں نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں۔ اعظم کے ساتھ پری گل کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جی چاہتا تھا یہ پل یہیں رک جائیں۔ پری گل ایک دم کھڑی ہو گئی، پلیز بہت دیر ہو گئی ہے، ابا آ جائیں گے اور مجھے نہ دیکھ کر پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اعظم نے اسے اتنا خوفزدہ دیکھ کر بائک سٹارٹ کی اور اس کے گھر سے کچھ دور چھوڑ دیا۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچ گئی۔ امی نے دیکھتے ہی پوچھا، کہاں رہ گئی تھی آج اتنی دیر؟ پتہ ہے نا تمہارے باپ کا، شکر کرو ابھی تک وہ آئے نہیں ہیں۔ امی آج کالج میں کچھ دیر ہو گئی، پڑھائی زیادہ تھی اس لیے۔ پری گل بولی، بیٹا بس خیال کیا کرو، جلدی گھر آ جایا کرو، اتنی مشکل سے اجازت دی انہوں نے تمہیں پڑھنے کی۔ جی امی، آئندہ خیال کروں گی۔
उनके आते ही घर में कोहराम मच जाता था। छोटी छोटी बातों से अम्मी को डांटना हमें तीनों बहनों को अपने अपने कमरों में सहम कर बैठ जाती। जब अब्बा घर से चले जाते तो कोई सुकून का सांस ले पाता। आजम और परिगुल की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब वो रोज मिलने लगे थे, जिसकी वजह से परिगुल अक्सर लेट हो जाती। कॉलेज से एक दिन अब्बा जान घर जल्दी आ गए। जब उन्हें परिगुल कहीं दिखाई ना दी तो जोर जोर से बोलने लगे, कहाँ है परिगुल? अम्मी खौफजदा हो गई कि पता नहीं अब क्या होगा। वो अभी तक कॉलेज से नहीं आई, उसकी पढ़ाई ज्यादा हो रही है इसलिए थोड़ी देर हो जाती है। अम्मी ने बात बनाई, ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो इतनी लेट हो रही है? इनका गुस्सा अरूज पर था। वो गुस्से में घर से बाहर निकल गए। अचानक उन्होंने परिगुल को आजम के साथ देख लिया। अब्बा ने परिगुल को मारना शुरू कर दिया। कमजात, कौन था वो कमीना जिसके साथ गुलछरे उड़ा रही हो? बता, यही पढ़ने गई थी बेगैरत? बोल, कौन था वो? आज पता नहीं क्या होने वाला था। परिगुल को मार मार कर उसके बाप ने अधमुआ कर दिया। अब्बा, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। परिगुल ने हिम्मत की और वो कुछ कह दिया जो उसके दिल में था। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे आगे बोलने लगी है और अपने लिए लड़का खुद पसंद करने लगी है। ये कहकर अब्बा ने उसे फिर से मारना शुरू कर दिया। आज से तेरा कॉलेज जाना बंद, घर से निकलना भी बंद, समझी? फिर अम्मी से बोली, अगर ये घर से बाहर निकली तो कदम भी बाहर रखा तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं। मैं इसका इंतजाम करता हूँ, जल्दी। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गए। अम्मा ने आगे बढ़कर परिगुल को उठाया और कमरे में ले आई और बोली, ये तूने क्या किया? तुझे पता है तेरे बाप का पहले ही क्या जीना कम हराम था जो अब तेरी वजह से हो गया। परिगुल ने रोते हुए अपना चेहरा ऊपर किया और बोली, क्यों अम्मी? क्या हम सारी जिंदगी यूं ही डर डर के और मारे खा खा कर काट देंगे? हमारी जिंदगी पर कोई हक नहीं है क्या? हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते? बचपन से लेकर आज तक हमने अब्बा का यही रवैया देखा। कभी उन्होंने हम बहनों के सर पर प्यार से हाथ नहीं रखा, कभी हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की और कभी हमने अब्बा को आपके साथ प्यार से बात करते हुए नहीं देखा। हाँ बेटा, हमारा खुद पर कोई हक नहीं। अम्मी रोते हुए परिगुल को गले लगा कर बोली और उनकी आंखों के सामने आज से 20 साल पहले का मंजर घूम गया, जब उन्होंने अपने बाबुल की दहलीज पार करके इस शख्स से शादी की थी और हमेशा के लिए इस शख्स की हो गई थी। लेकिन इस शख्स ने कभी भी उसे इज्जत से और अपनी मोहब्बत का एतबार नहीं दिलाया था। आजम रोज बाइक पर उसका वेट करता लेकिन नहीं आती। परेशान होकर उसने फ्रीहा के मोबाइल पर कॉल की तो उसने सारी बात आजम को बता दी। तुम मेरा एक काम करोगी, तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा। रिहा बोली, हाँ बताओ प्लीज, इसमें एहसान कैसा? मेरी एक बार प्लीज परिगुल से बात करवा दो। ये बहुत ही मुश्किल काम है लेकिन मैं कोशिश करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, फ्रीहा ने कहा और परिगुल खुद भी बेताब थी आजम से बात करने को। जैसे ही कमरे में तन्हाई हुई, फ्रीहा ने फौरन आजम को कॉल मिलाई और परिगुल को फोन पकड़ा दिया और कहा, जल्दी जल्दी बात करो, मैं देखती हूँ कहीं कमरे में कोई ना आ जाए। प्लीज आजम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से ले जाओ। अब्बा को सब मालूम हो गया है, मुझ पर बहुत पाबंदियाँ लग चुकी हैं। मेरी जान, तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आजम परिगुल को हौसला दे रहा था। हकीकत में उसका अपना दिल भी बहुत दुख रहा था। तुम अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए भेज दो, मेरे अब्बा मेरी शादी जल्दी करना चाहते हैं। आजम बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं अब्बू से बात करता हूँ। और फिर आजम ने अपने अब्बू से बात की कि वो शादी करना चाहता है। अब्बू, मैं शादी करना चाहता हूँ। आजम ने झिझकते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है, अब तुम वैसे भी अपने पैरों पर खड़े हो चुके हो। हम भी यही सोच रहे थे कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए, तुम्हारे लिए अब रिश्ता तलाश करते हैं। अब्बू, मैंने लड़की पसंद कर ली। क्या मतलब? अब्बू उसकी बात सुनकर हैरान रह गए और अजीब सी नजरों से उसे देखा। फिर आजम ने पूरी बात तफसील से बता दी। अब्बू खामोश रहे। आजम बोला, क्या बात है, आप रजामंद नहीं हैं? बेटा, पहले मैं घर वालों से मशवरा कर लूँ, ठीक है? अब्बू खामोश हो गए। आजम भी खामोशी से अपने काम में मसरूफ रहने लगा और फिर अब्बू और अम्मी ने उसे कहा कि हम रिश्ते के लिए राजी हैं। उधर परिगुल दुआएं मांग रही थी कब आजम के घर वाले रिश्ता लेकर आएं और फिर आजम ने इतला भिजवाई कि उसके अब्बू परिगुल के घर रिश्ता लेकर आने वाले हैं। परिगुल ने अपनी माँ से बात की कि आजम के अब्बू अम्मी रिश्ता लेकर आ रहे हैं। अगले दिन आजम के वालिदैन तैयार खड़े थे जाने के लिए। आजम बोला, अब्बू पूरी कोशिश कीजिएगा। बेटा, तुम्हारे कहने पर हम जा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी औलाद की खुशी अजीज है, आगे तुम्हारी किस्मत। जब वो लोग परिगुल के घर पहुँचे तो दरवाजा उसके अब्बा ने खोला और पूछा, जी किससे मिलना है? आपसे ही मिलना है। जी आए बैठे, फिर बात करते हैं। वो अंदर चले गए। बैठने के बाद अपने बारे में बताने लगे। फिर असल मौजू की तरफ आ गए और बोले, दरअसल भाई साहब, हम आपकी बेटी के रिश्ते के लिए आए हैं। इतनी ही बात हुई थी कि परिगुल की अम्मी चाय लेकर अंदर दाखिल हुई। वो एकदम खड़े हो गए।
तुम यहाँ? इधर परिगुल की अम्मी से चाय की डिश जमीन पर गिर गई। वो सकते की हालत में उनको देखती रही और आंखों से आंसू जारी हो गए। वो अपनी बीवी को देखकर बोले, चलो यहाँ से, मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुकना चाहती। बाद में पता चला कि जो परिगुल की अम्मी हैं वो तो आजम की फुप्पो हैं, जिन्होंने घर से भागकर शादी की थी और 20 साल पहले जो कलंक हमारे मुंह पर लगा कर गई थी, आजम की अम्मी ने उसे सब कुछ बता दिया। प्लीज अम्मी खुलकर बताएं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज से 20 साल पहले तुम्हारी शबाना पुप्पो जो हमारे मुंह पर कालक मल कर गई थी, परिगुल उसी की बेटी है। ये अल्फाज सुनकर जैसे आजम पर बिजली बनकर गिरे। इससे ज्यादा वो कुछ न सुन सका और घर से निकल गया। आजम का बुरा हाल था, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, न खाने पीने को दिल चाहता था, बस चुपचाप अपने काम में लगा रहता। अब्बू उसे ऐसे हाल में देखकर दिल ही दिल में कुटते थे और सोचते थे काश परिगुल शबाना की बेटी ना होती तो वो अपना आप बेच कर भी बेटे की खुशी पूरी कर देते। एक दिन आजम काम में मसरूफ था। अचानक मोबाइल की बेल बजने लगी। आजम ने कॉल उठाई तो फरीहा बोली, आजम भाई क्या हाल है, आप ठीक हैं? बस ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। आजम भाई मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। फरीहा बोली, हाँ हाँ कहो। आजम भाई परिगुल का बहुत बुरा हाल है, प्लीज कुछ करे। मेरी गुल से बात करवा सकती हो क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, 1 मिनट ठहरे, फरीहा ने जवाब दिया। थोड़ी देर में परिगुल फोन पर थी। जैसे ही उसने आजम की आवाज सुनी रोने लगी। आजम ने कहा, प्लीज जान रोना छोड़ो, मुझसे बात करो। तुमसे बात करने को मैं कितना बेताब था। कैसी हो तुम? कैसी हो सकती हूँ तुम्हारे बगैर, वो भी किसी और के साथ? मैं सोच भी नहीं सकती। मैं जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी और के साथ मैं सोच भी नहीं सकती। प्लीज मुझे ले जाओ यहाँ से। मेरी जान ऐसा ना कहो, मैं भी तो नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। दिलो जान से मैंने तुम्हें चाहा है, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। लेकिन आजम इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ यार पुप्पो इस तरह मिलेगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन आजम मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। ऐसा करते हैं हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। परिगुल बोली, तुम परेशान ना हो, और बड़ों की मर्जी के खिलाफ हम ऐसा कदम नहीं उठा सकते। लेकिन अगर वो ना माने तो मैं मर जाऊंगी, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर। आजम का दिल गम से फटा जा रहा था। वालिदैन से बगावत करना चाहता था और परिगुल के बगैर नहीं रह सकता था। इधर गुल का बाप ने उसके लिए रिश्ता तलाश कर लिया। गुल ये तो जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे तैसे करके फरीहा को बुलाया और उससे कहा, फरीहा प्लीज मेरी एक बार आजम से बात करवा दो। और फिर आजम की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं पापा से बात करता हूँ। मेरी जान मैं भी तुमसे बिछड़कर जी नहीं पाऊंगा। मैंने पहले तुमसे कहा था ना, इस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो। इसकी माँ की वजह से आज तक मेरी आंखें झुक जाती हैं, सब थू थू करते हैं। आज मैं उसी की बेटी को बहू बना कर ले आऊँ। आजम के बाप ने नफरत से आजम को वार्न किया था। आजम को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। आजम ने परिगुल को बताया, पापा नहीं मान रहे। ठीक है हम फिर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता था। एक दिन आजम अपने काम में मसरूफ था। आजम आप पिछली गली में आ जाएं। और फिर परिगुल इतना कदम भी उठा सकती है वो सोच भी नहीं सकता था। कहाँ लेकर जा रहे हो? लेकिन वह खामोश रहा। वो इसे लेकर उसके घर पहुँच गया। परिगुल का हाथ उसने अपनी पुप्पो के हाथ में पकड़ा कर कहा, लो पुप्पो मैं नहीं चाहता कल जो गलती आपने की, जिसकी सजा हम आज भी भुगत रहे हैं, वो आपकी बेटी ना करे। और मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो घर से भागी हुई हो। और परिगुल तुमने गलत समझा था, मैं तुमसे भागकर शादी कभी नहीं करूँगा, हरगिज नहीं। जो बातें हम पुप्पो की वजह से सुनते हैं अपनी बीवी के खिलाफ हरगिज नहीं सुन सकेंगे। ये कहकर आजम उसके घर से निकल गया। परिगुल हैरानगी से उसकी तरफ देखती रही और उसकी आवाज भी न दे सकी। अभी उस बात को 3-4 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन फरीहा का फोन आया। वो घबरा कर बोली, आजम भाई क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? फरीहा बोली, गुल ने खुदकुशी कर ली। ये कहकर वो रोने लगी। आजम के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से उसे संभाला, लेकिन वो संभल ना सका और बेहोश हो गया। और कई दिन तक वो अस्पताल में रहा। बाज दफा आजम पागलों की हरकतें करता है। कब्रिस्तान जाकर घंटों परिगुल की कब्र पर बैठकर रोता है। लेकिन अब क्या हो सकता है? काश मैं मान जाता तो आज इतना कुछ ना होता। लेकिन काश काश। ख़वातीनो हज़रात, बाज अना के रिश्ते इंसान की जिंदगी को इसी तरह तबाह कर देते हैं। अगर परी की माँ ने एक गलत कदम उठाया था तो उसके भाई ने अपनी अना की भेंट उसकी बेटी को चढ़ा दिया था। अगर परी की माँ जिंदा थी तो वो परी के खुदकुशी के बाद यकीनन अपने आप को अपनी बेटी का मुजरिम समझती होगी। लेकिन आजम के बाप ने अपनी अना के पीछे अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर इंसान से कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसे गलतियां समझ के माफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान में इतना भी ज़र्फ नहीं है कि वो अपनों की गलतियों को माफ कर दे तो फिर इंसान नहीं है वो। ख़वातीनो हज़रात, हमारी आज की ये वीडियो इसी मोरल कहानी की बुनियाद है कि अगर आपके अपने कुछ कोताहियां, कुछ गलतियां करते हैं तो उन्हें बड़े दिल से माफ कर दें, क्योंकि आपकी अना और आपका गुस्सा, आपकी जिद
دوسرے کی زندگی کس طرح برباد کر سکتی ہے، یہ کہانی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ امید ہے ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ جانے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔